The question number 51, the infective stage of the Entamoeba histolytica, that is tetranucleate form. ये 96 का क्वेश्चन है. The infective stage of Entamoeba histolytica is the tetranucleate form, and the infection depends upon the intake of food or water contaminated with the fecal matter. That is this. So this question is most repeated question. And also, how many nuclei are found in the mature cyst of the E. coli? That is 8. So let's see the explanation. As you can see here, that in E. coli the most distinguishing feature is that 8 core nuclei, and which develops as a cyst, begins to mature, while immature may contain only 1 to 3 nuclei. So next time they can ask like immature cyst कितना contain करता है, तो वो है 1 to 3 nuclei, और जो mature है वो E. coli is the only Entamoeba species found in humans that has more than 4 nuclei in the. ये line भी important है. क्वेश्चन से ही क्वेश्चन मोस्टली बनाते हैं. दैट इज ई कोलाई इज द ओनली इंटामोeba, तो ये पूछ सकते हैं. सेकंड, फाउंड इन ह्यूमंस ओनली. नाउ दे हैव मोर देन 4 न्यूक्लिया इन द सिस्ट स्टेज. सो इन द सिस्ट स्टेज इसको नोट करके लिख लेंगे. नेक्स्ट, द एक्सक्रीशन इन द इंटामोeba हिस्टोलिटिका टेक्स प्लेस बाय द जनरल बॉडी surface, and if we see the explanation here, that is the excretion in the E histolytica that takes place through the GBS, because in unicellular animals there is no specific organ for this kind of function, and also the contractile vacuole is absent but food vacuole. This line is very important. अभी 3 साल पहले वाले एग्जाम में आया था कि contractile vacuole is absent and food vacuole is also absent, तो वो गलत था. तो इसलिए ये लाइन इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको हाईलाइट कर लीजिए. In humans, the Entamoeba gingivalis live in the pus pockets of the pyria. ये क्वेश्चन मोर देन 5 टाइम्स आया हुआ है फ्रॉम 1990s till today. Now the Entamoeba gingivalis is a protozoan endoparassite, endo, और ये जो है resides in the tartar and pus pockets of the teeth of the pyria infected human beings, and it is the first parasitic amoeba known to the human beings. ये लाइन क्वेश्चन में फिर से आ सकता है कि नेम द फर्स्ट parasitic amoeba which is known to the human being, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है. यहाँ पे एग्ज़ाम के डेट के साथ में दिया है सब, तो देख भी सकते हैं. द क्लोरोप्लास्ट इन यूग्लिना इज कंपोज्ड ऑफ A, B and the beta carotene. The chloroplast of the Euglena is composed of chlorophyll A, B and beta carotene, and it is a genus of the single cell flagellates eukaryotes, and there is enough sunlight and Euglena utilizes chlorophyll A and B. Beta carotene produces a sugar by photosynthesis, and it is believed to be surrounded by protoplasmic capsule. ऐसा कोई खास इसमें क्वेश्चन रिपीट नहीं होगा. नेक्स्ट, 2010 question. Euglena contains chlorophyll types, chlorophyll B and chlorophyll A. The Euglena is classified in the kingdom Protista and phylum Euglenophyta, in which the photosynthesis pigment A, B and carotene are found. यही क्वेश्चन इसके पहले भी आया था. यही क्वेश्चन घुमा घुमा के मैक्सिमम टाइम्स पूछता है कि फोटोसिंथेटिक पिगमेंट A, B, कैरोटीन, तो कैरोटीन है ओनली करके लिख देगा. सो ये लाइन इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग यूग्लिना बिलोंग्स टू द क्लास फाइटोमैस्टिकोफोरा. यहाँ पे एक्सप्लेन भी किया है दैट इन द क्लास मैस्टिगोफोरा फ्लैजिला आर फाउंड एज लोकोमोटिव ऑर्गन्स, एंड दैट इज वाई दीज आर ऑल्सो कॉल्ड एज फ्लैजिलेट्स. ये क्वेश्चन आया हुआ है. दिस शो दैट द बोथ हेट्रोट्रॉफिक एंड ऑटोट्रॉफिक टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन फाउंड हियर, एंड इन दिस क्लास न्यूट्रिशन इज मोस्ट वैरिड, एंड क्लास मैस्टिगोफोरा इज क्लासिफाइड एज द फाइटोमैस्टिगोफोरा एंड जूमैस्टिगोफोरा. नाउ इन द ऑर्गेनिज्म ऑफ फाइटोमैस्टिगोफोरा पिगमेंट्स आर फाउंड, एंड ये एक्वेटिक है एंड कवर्ड बाय एक्सोस्केलेटन ऑफ कैल्शियम, and organisms like Euglena, Chlamydomonas, Noctiluca and Volvox are included in it. तो यहाँ से एक क्वेश्चन बन सकता है, दैट इज इन द ऑर्गेनिजम्स ऑफ फाइटोमैस्टिगोफोरा, इसमें ये और कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स आते हैं. तो यूग्लिना है, क्लेमाइडोमोनास है, नॉक्टिल्यूका है, वोल्वॉक्स है. इसको कोई ट्रिक से याद कर लेंगे, जैसे NCVE, तो कोई ट्रिक अपने बना लेंगे क्योंकि इंपॉर्टेंट है ये लाइन. नेक्स्ट इज these are the autotrophic and do photosynthesis organism of zoomastogophora are found as parasites,
or symbionts. Some organisms are marine as well. So example is Leishmania, Trypanosoma and Giardia. Giardia is also known as the grand old man of intestine. ये 3 से 4 बार PYQs में पूछा है. तो इसका एग्जाम्पल देख लिया हमने कि ये तीनों, ये इंपॉर्टेंट है, ये किसके एग्जाम्पल हैं, और ये किसके एग्जाम्पल हैं, ये इसके. The two-word definition unicellular animals for protozoa is found rather unsatisfactory due to one of the following examples. It's stated to be one of the following exceptions to this definition, that is Euglena. The protozoa are unicellular organism, but the body of Euglena is enveloped by the organical structure that is called as pellicle. ये भी क्वेश्चन पूछा है, pellicle क्या है. Therefore, Euglena is exception. Euglena is an example of protozoa found in rather unsatisfactory. They possess characteristic of both the plant and the animal. एक क्वेश्चन यहाँ से भी बनता है कि नेम द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्लांट एंड द एनिमल, दैट इज यूग्लिना. तो एक ही क्वेश्चन से कम 4 क्वेश्चन बने. द पैरामाइलॉन बॉडीज रिजर्व फूड ऑफ द यूग्लिना. ये क्वेश्चन 5 बार से ज़्यादा पूछा गया है, चाहे स्टेट से रिलेटेड एग्जाम्स हो और चाहे LT वगैरह में. पैरामाइलम आर द रिजर्व फूड ऑफ यूग्लिना. पहले ये पूछ लेता है कि अमीबा का है या किसका है, तो कंफ्यूज करने के लिए तो यूग्लिना होता है. इट इज़ पॉलीसेकेराइड. ये पूछ लेता है डाई है कि डाईसेकेराइड है क्या या मोनोसेकेराइड है, तो ऐसा नहीं है. पॉलीसेकेराइड है, सिमिलर टू स्टार्च. यूग्लिना इज कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्लांट एंड एनिमल. ये क्वेश्चन पूछा गया था, यहाँ पे लाइन लिखी भी गई है. द क्लोरोप्लास्ट फाउंड इन यूग्लिना कंटेन्स द क्लोरोफिल विच एड्स इन द सिंथेसिस ऑफ द कार्बोहाइड्रेट टू बी स्टोर्ड एट स्टार्च ग्रैन्यूल्स एंड पैरामाइलन. तो स्टार्च ग्रैन्यूल्स भी होता है एंड पैरामाइलन भी होता है यूग्लिना में. तो कभी कभी करके दे देता है पैरामाइलन, ओनली पैरामाइलन. फिर नेक्स्ट ऑप्शन में रहेगा कि पैरामाइलन प्लस स्टार्च ग्रैन्यूल एज वेल, तो वो सही होगा. तो एक ही क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन से हमें यहाँ पे ये एक पहला क्वेश्चन, उसके बाद यहाँ पे ये पॉलीसेकेराइड है कि डाईसेकेराइड है, फिर यहाँ से ये कनेक्टिंग लिंक है, तो क्या है, व्हाट इज़ द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द प्लांट एंड एनिमल. फिर नेक्स्ट क्वेश्चन ये स्टार्च ग्रैन्यूल्स एंड पैरामाइलन. क्वेश्चन एक ही है जिससे 5 क्वेश्चन बन जा रहे हैं. The reserve food in the Euglena viridis is mainly, that is, paramylum. The reserve food in Euglena is the paramylum, and the chloroplast in Euglena contains paranoids which are used to synthesize paramylum, and it is the conversion of the starch. सेम ही क्वेश्चन है और ये घुमा के फिर से पूछ लिया है. फिर पैरामाइलम तो देख रहे हैं कि एक ही पैरामाइलम है, जैसे कॉन्ट्राडाइल वैक्यूल था वैसे ही ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है. तो कार्बोहाइड्रेट ना, पैरामाइलॉन या पैरामाइलम, ये दोनों ही ऑप्शन में दे सकता है. कार्बोहाइड्रेट सिमिलर टू स्टार्च एंड द क्लोरोप्लास्ट फाउंड इन यूग्लिना एंड इट कंटेन्स द क्लोरोफिल विच एड इन द सिंथेसिस ऑफ कार्बोहाइड्रेट टू बी स्टोर्ड स्टार्च ग्रैन्यूल्स एंड पैरामाइलम. सेम क्वेश्चन है, इसमें कुछ खास नोट करने जैसा नहीं. नेक्स्ट, the proof of sexual reproduction is not found in the Euglena viridis. There is no evidence of sexual reproduction in Euglena viridis because in this asexual reproduction takes place through longitudinal binary fission. Next time एग्जाम में आ जाएगा कि Euglena viridis reproduce by, तो उसमें रहेगा कि अलग अलग ऑप्शंस रहेंगे बाइनरी फिशन के, तो मल्टीपल बाइनरी फिशन या फिर ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन. लॉन्गिट्यूडनल है, इसको नोट कर लेंगे, इंपॉर्टेंट है. और उसके बाद है कि sexual reproduction is absent. Okay, reproduction begins with the mitosis of the cell nucleus followed by the division of the cell itself. ठीक है. Now in Euglena the food is stored in the form of paramyelin granules. पैरामाइलन फिर से आ गया, इज अ कन्वर्जन प्रोडक्ट ऑफ स्टार्च. अभी क्या बताया था, ये क्या है, डेली SSB PGT 2015. ये 1996 में भी पूछा था, फिर 2001 में पूछा था, 2003 में पूछा था, 5 में पूछा था, अब 15 में पूछ रहा है, तो अब PCS में 2009 में पूछा था. सो यूग्लिना का वही जो कनेक्टिंग लिंक इससे है, और इसका जो ये डाईसेकेराइड है कि पॉली, वो पॉलीसेकेराइड वाला, और ये सब बहुत इंपॉर्टेंट लाइन हो जाते हैं. ओके, सो इसका एक्सप्लेनेशन एक बार फिर से देख लेते हैं. पैरामाइलन इज द कन्वर्जन प्रोडक्ट ऑफ स्टार्च एंड joined by the beta 1,3 linkage and branches point by the beta 1,6 linkages. ये भी पूछ लेगा कि 1,4 linkage and 1,6 linkage, तो ये दोनों नोट करने लायक है. The chloroplast found in Euglena contains the chlorophyll which aids in the synthesis of carbohydrate to be stored in starch granules and paramyelin. Paramyelin is made up of paranoids of the Euglena. एक क्वेश्चन ये भी आया था कि पैरानॉइड होता क्या है. पैरानॉइड प्रोटीन सराउंडेड बाय स्टार्च, तो वहाँ पे ऑप्शन में ये भी था कि स्टार्च सराउंडेड बाय प्रोटीन, तो ये गलत है, ये सही है, प्रोटीन सराउंडेड बाय स्टार्च.
द ट्रोफोजोइट ऑफ द प्लाज्मोडियम लिव्स इन द एरिथ्रोसाइट ऑफ द मैन। इसका एक्सप्लेनेशन भी दिया है कि ट्रोफोजोइट ऑफ प्लाज्मोडियम एरिथ्रोसाइट ऑफ मैन में रहता है एंड इट इज अ कॉजेटिव एजेंट ऑफ मलेरिया। ट्रोफोजोइट्स आर थिक वॉल्ड सिस्ट्स formed by the plasmodium, activated and feeding stage of plasmodium found in surface of erythrocytes. When the infected mosquito bites a healthy person, sporozoites are passed on to the person and these sporozoites enter the circulation, reach the liver. ये क्वेश्चन बन सकता है, रीच द किडनी क्या देगा, तो लिवर है, लिवर, रीच द लिवर एंड द इन्फेक्टेड लिवर सेल नोन एज द, ये इन्फेक्टेड लिवर सेल्स को क्या बोलते हैं, ये सीजॉन्ट बर्स्ट्स and releases the what merozoite then develops into the trophozoite। तो जो हमारे काम की लाइन है वो यहाँ से बनता है, दैट इज ये रीचेस लीवर और इन्फेक्टेड लिवर सेल्स को क्या बोलते हैं, सीजॉन्ट बर्स्ट्स, फिर रिलीज क्या करता है, मेरोजॉइट, यहाँ लिख देगा ट्रोफोजॉइट, वो गलत होगा, दैट डेवलप्स इनटू ट्रोफोजॉइट। ओके, यहाँ पे एग्जांपल समझाया कि प्लाज्मेडियम, सबसे पहली बात तो ये द डेडलीस्ट है, क्वेश्चन ये भी आता है कि नेम द डेडलीस्ट प्लाज्मोडियम, दैट इज फैल्सीपेरम। और ये इसके स्टेजेस हैं, ट्रोफोजॉइट्स, ग्रोइंग द सीजॉन्ट, और ये रोजेट स्टेज, और ये गैमेटोसाइट स्टेज। तो ये और ये इसको ऐसे फिगर के तरीके से देख लेंगे। The infective stage of the malarial parasite is the sporozoite. The sporozoite represents the infective form of the malarial parasite. Each sporozoite has a tapering and containing a single nucleus. When the female Anopheles mosquito bites a healthy person, the sporozoites are injected in her blood along with the saliva, and the sporozoites go to the human liver for the multiplication, which turns into merozoites and attacks the human RBC. वही सेम है। In the life cycle of the plasmodium, the hemozoin is found in the merozoite stage. फिर ये एक्सप्लेन भी किया है कि hemozoin is found in the merozoite stage. Each cytoplasmic mass into one nucleus becomes one oval-shaped merozoites. ये भी पूछता है shape of the merozoite, oval shape. Hemozoin granules are gathered at the center and rhizome stage found in liver cell, RBC. Trophozoite stage found in RBC. Okay. ये एक्सप्लेन किया है, चाहे तो एक बार इसका लाइफ साइकिल तरीके से देख सकते हैं। अभी तो ऐसा कुछ आया नहीं है, लेकिन हाँ ये इम्पॉर्टेंट है। रिंग स्टेज एसोसिएटेड विथ, क्वेश्चन में रहता है। द इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ द प्लाज्मोडियम विवैक्स फॉर द फीमेल एनोफिलिस इज, दैट इज गैमेटोसाइट। When the female Anopheles sucks the blood malarial individual, the gametocytes of the parasite find their way into the gut of the mosquito. So this is this infected stage of P. vivax in the female Anopheles mosquito. Morer's dots are found in the erythrocytes of the man infected with the माफ करके याद कर सकते हैं, माफ। और ये जो डॉट वाले क्वेश्चन आते हैं कई बार पूछा भी है, तो यहाँ पे ये मैच द फॉलोइंग में क्वेश्चन नेक्स्ट टाइम आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या ये पहला ट्रिक दिया जाता है माफ, ओके, और ये द स्कफनर्स डॉट, पी ओवेल एंड पी विवैक्स एंड पी मलेरी जीमैन्स डॉट्स। ये क्वेश्चन अभी तक मैच द फॉलोइंग में नहीं आया है, सिर्फ हायर एजुकेशन में आया, लेकिन ये कभी भी क्वेश्चन आ सकता है मैच द फॉलोइंग के तरीके से। इसको नोट कर लेंगे, डॉट। फिर भी इसको रीड करते हैं। मलेरिया इज कॉज्ड बाय प्रोटोजोन पैरासाइट एंड द 4 स्पीशीज ऑफ प्लाज्मोडियम आर नोन टू कॉज डिफरेंट टाइप्स ऑफ द मलेरिया इन ह्यूमंस। देखते हैं प्लाज्मोडियम विवेक्स एंड प्लाज्मोडियम मलेरी। द लाइफ साइकिल ऑफ द प्लाज्मोडियम इज कैरेक्टराइज्ड बाय एन एक्सोजीनियस सेक्सुअल फेज, द स्पोरोगोनी। ये भी इंपॉर्टेंट है। सेक्सुअल फेज को क्या बोलते हैं? स्पोरोगोनी, इन विच मल्टीप्लिकेशन ऑकर्स इन फीमेल मस्कीटो और एनोफिलिस, और ये एनोफिलिस मस्कीटो एंडोजीनस ए सेक्शुअल फेज सीजोगोनी। तो सेक्शुअल फेज कॉल्ड एज स्पोरोगोनी एंड ए सेक्शुअल फेज कॉल्ड एज सीजोगोनी। इसको नोट कर लेंगे कहीं। इन द प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम इन्फेक्शन द minute granulicine, the corpuscle cytoplasm of parasitized erythrocytes called as Morer's dots. Hemoglobin affect the motion of Morer's cleft in the plasmodium. Falciparum infected the erythrocytes in the parasitic erythrocytes and generation of an actin network, protein trafficking from the Morer's dot. So next time यहाँ से एक क्वेश्चन ये बन सकता है
कि required for the vesicular protein trafficking from the Morer's dot. तो प्रोटीन ट्रैफिकिंग किससे रिलेटेड है? Morer's dots. The mature gametocyte of the plasmodium are found in stomach of the female mosquito. तो ये स्टमक की जगह कई बार कंफ्यूज कर सकते हैं, जैसे लीवर है, किडनी है, कुछ और है. रीड कर लेते हैं. मेच्योर गैमेटोसाइट ऑफ द प्लाज्मोडियम ऑकर इन द स्टमक ऑफ द फीमेल मस्कीटो, वेर एज गैमेटोसाइट फार्म्ड इन द आरबीसी ऑफ द मैन बट नॉट द मेच्योर इन आरबीसी एंड सीजॉन्ट स्टेज फाउंड इन द लीवर. ये क्वेश्चन सीधे सीधे क्वेश्चन आया PYQ में, अगर आप पेपर एनालाइज करोगे मिलेगा. सीजॉन्ट स्टेज फाउंड इन द लीवर सेल ऑफ द मैन. Next, which one of the following has the vermiform motile zygote in its life cycle? That is plasmodium. यहाँ एक्सप्लेन क्या रीड कर लें. The plasmodium has a vermiform motile zygote that is called as ookinets. तो ये क्वेश्चन बनता है ookinets होता क्या है, किससे एसोसिएटेड है, और ये प्लाज्मोडियम हैज़ किस टाइप का, वर्मीफॉर्म मोटाइल है, नॉन मोटाइल है. तो ये पूरी लाइन अपने आप में इंपॉर्टेंट है कि प्लाज्मोडियम हैज़ अ वर्मीफॉर्म motile zygote called as ookinets, and for some time the zygote remain rounded and the motionless, but soon it becomes elongated vermiform motile. It performs wriggling and gliding movement known as vermicule or ookinets. The tail present in the zygote of the plasmodium. ये लाइन सीधे सीधे क्वेश्चन आता है कि नेम द थिंग दैट परफॉर्म्स द रिगलिंग और द ग्लाइडिंग मूवमेंट नोन एज द वर्मिक्यूल और ookinets. तो उसको बोलते क्या हैं, ये पहला आ जाएगा. परफॉर्म कौन करता है? ये ठीक. और ये सीधे सीधे स्टेटमेंट लिखा रहता है कि टेल एब्सेंट इन द जाइगोट ऑफ द प्लाज्मोडियम. तो ये प्रेजेंट होगा, एब्सेंट नहीं होगा. तो ये लाइन भी इंपॉर्टेंट है. यहाँ साइकिल इन मस्कीटो दिया है, साइकिल इन ह्यूमन दिया है. ये स्पोरोजॉइड्स, नो सलावरी ग्लैंड्स, टू द सलावरी ग्लैंड्स, देन bird sting cyst oocyte, then mosquito midgut, zygote, microgamete, gametocyte, erythrocytes. ये पूरा ऐसे दिया है, इसको चाहे तो पर से देख सकते हैं. बाकी लॉन्ग आंसर में तो इसको लिखा ही हो. अभी यहाँ मोटाइल नॉन मोटाइल जाइगोट पे बात हो रही थी. मोटाइल जाइगोट इज फाउंड इन द लाइफ हिस्ट्री ऑफ, यहाँ पे क्वेश्चन आ भी गया है प्लाज्मोडियम. तो जो एक्सप्लेनेशन दिया है उसमें जो है बहुत ध्यान से जो क्वेश्चन रिपीट हो सकता है और घुमा के ही रिपीट करते हैं. जैसे अभी डॉट वाला था तो उसको मैच द फॉलोइंग में नेक्स्ट टाइम किसी ना किसी स्टेट रिलेटेड एग्जाम में आ ही जाएगा. The malaria is a mosquito-borne infection disease affecting the humans and other animals caused by Plasmodium species. Okay, ये फीमेल एनोफिलिस मस्कीटो. सबसे पहले तो याद रखना कि मेल ये इन्फेक्शन कॉज नहीं करता. दैट इज ओनली फीमेल एसोसिएटेड विद द इन्फेक्शन कॉजिंग मलेरिया. एंड द मस्कीटो गैमेटोसाइट्स आर टेकन अप विद द ब्लड एंड मेच्योर इन द मस्कीटो गट. द मेल एंड द फीमेल गैमेटोसाइट फॉर्म्स, ये मेल एंड फीमेल गैमेटोसाइट फॉर्म्स एंड ookinets. ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि ओनली मेल form this, only female. तो ऐसा कुछ नहीं है. both the fertilized motile zygote and ookinete develops into the new sporozoites and then that migrate to the insect salivary glands ready to infect a new vertebrate host. The plasmodium is digenetic parasite which completed their life cycle on the two host. Digenetic होते हैं, di means two होता है, di means two. The mosquito is primary host and the man is intermediate host. ये लाइन इंपॉर्टेंट है, सीधे सीधे क्वेश्चन आता है. Who is the primary host and who is the secondary host? तो primary host is man and intermediate host mosquito is the primary host. Mosquito is the primary host and man is the intermediate host. Now plasmodium causes malaria in human. In female anopheles mosquito sexual reproduction occurs and in human asexual. तो कई बार कंफ्यूजन हो सकता है कि ह्यूमन में सेक्सुअल आ सकता है क्योंकि मैमल है, ऐसा नहीं है. नेक्स्ट, द क्रिप्टोजोइट इज अ स्टेज इन द लाइफ साइकिल ऑफ द प्लाज्मोडियम विवैक्स दैट इज फाउंड इन द क्रिप्टोजोइट स्टेज है इन द लाइफ साइकिल ऑफ P. vivax दैट इज फाउंड इन द लीवर ऑफ द मैन. ये यहाँ पे कंफ्यूज कर सकते हैं लीवर ऑफ द डॉग, शीप या कुछ और. स्पोरोजोइड फाउंड इन द सलिवरी ग्लैंड ऑफ द मस्कीटो. द स्टेज ऑफ द प्लाज्मोडियम इंजेक्टेड बाय द मस्कीटो इनटू द ह्यूमन ब्लड इज स्पोरोजोइड. तो इसका हो जाएगा लीवर ऑफ द मैन. द सीजॉन्ट स्टेज ऑफ द प्लाज्मोडियम फाउंड इन द लीवर एंड द RBC ऑफ द मैन. B. अभी डॉट वाला
विच स्टेज ऑफ द प्लाज्मोडियम लाइफ साइकिल इज इन्फेक्टिव टू मैन, दैट इज स्पोरोजोइट। और ये देख सकते हैं 9, 2 एंड 11 तीन बार एक ही क्वेश्चन रिपीट हुआ है, और इसके पहले भी जो फर्स्ट क्वेश्चन था वो 2006 यूपीपीसीएस में रिपीट हुआ था। द माइक्रोगैमेट एंड मेगागैमेट इन प्लाज्मोडियम फॉर्म, दैट इज जाइगोट्स। यहाँ इसको एक्सप्लेन किया है, ऐसा कुछ खास इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है। द गैमेटोसाइट ऑफ द मलेरियल प्लाज्मोडियम, दैट इज ब्लड ऑफ द मैन। द क्वेश्चन नंबर 81, दैट इज करेक्ट आंसर इज एरिथ्रोसाइट ऑफ द मैन। सो इन विच स्टेज ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस द ookinete, यही सेम क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। ookinete स्टेज से रिलेटेड बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया। इन द स्टमक ऑफ द, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको नोट भी कर लेंगे। विच स्पीशीज ऑफ द प्लाज्मोडियम कॉजेज सेरिब्रल मलेरिया, मीन्स ये ब्रेन मलेरिया के बारे में बात कर रहा है। सो इट इज़ एसोसिएटेड विद द, यही है जो डेडलीस्ट है, यही है जो डेडलीस्ट है। ये भले 1994 का क्वेश्चन हो, लेकिन ये हर 3 से 4 साल बाद रिपीट होता है, और ये पूरा मैच द फॉलोइंग के परस्पेक्टिव से भी इम्पॉर्टेंट है, और ये कई बार पूछा भी है, चाहे ये वन लाइनर में आ जाए और चाहे ये मैच द फॉलोइंग में। सो पी फैल्सीफेरम सेरिब्रल मलेरिया, और इसी को, या फिर ये आ जाएगा मैलिग्नेंट मलेरिया, ये एस्टिवो ऑटोमलर या पर्निशियस ट्रॉपिकल या ब्लैक वाटर फीवर। तो ये चारों लाइन इंपॉर्टेंट है। पी विवैक्स, विवैक्स मलेरिया, पी ओवेल, माइल्ड टर्शियन मलेरिया, एंड प्लाज्मोडियम मलेरिया, क्वार्टर मलेरिया। इसको नोट कर सकते हैं मैच द फॉलोइंग के तरीके। ये क्वेश्चन आ गया है कि ये जो मैलिग्नेंट टर्शियन मलेरिया है कॉज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग, दैट इज पी फैल्सीफेरम। सो यहाँ पे एक्सप्लेन भी किया है ये, एंड ये इंपॉर्टेंट है। एवरी 48 आवर्स ये इनका साइकिल होता है। ऑल स्टेजेस ऑफ प्लाज्मोडियम get digested in the stomach except ये गैमेटोसाइट। ये क्वेश्चन 5 से 6 बार रिपीट हुआ है। एनिसोगैमी इज़ द यूनियन ऑफ द डिसिमिलर गैमेट्स एज सीन इन द प्लाज्मोडियम। तो इसमें होता क्या है कि जो दो फ्यूजन होता है गैमेट्स का, उनका साइज़ सेम नहीं होता है। यहाँ पे इसको दिखाया भी है कि ookinete जो है वो उसका साइज़, और ये फीमेल गैमेट इसका, और ये फ्यूजन, और ये फिर ये प्लाज्मोडियम बर्जी, यहाँ ये रैट का है, तो इससे जो है एक ही क्वेश्चन रिपीट हो सकता है, दैट इज़ इट बिलोंग्स टू द सब जीनस विंकिया, और ये आइसोलेट किया गया था फ्रॉम द थिकेट रैट्स इन सेंट्रल अफ्रीका। ये, और ये पी बर्जी इज़ द पॉपुलर मॉडल ऑर्गेनिज्म फॉर द स्टडी ऑफ ह्यूमन मलेरिया। बाकी तो ऐसा कुछ खास नहीं है। नेक्स्ट टॉपिक है ये पैरामीशियम। द माइक्रोन्यूक्लियस ऑफ पैरामीशियम इज़ डिप्लॉयड, और यहाँ पे दिया गया कि 50 to 300 मिलियन साइज़ होता है, और ये डिप्लॉयड होता है, और 2 काइंड्स ऑफ न्यूक्लियाई प्रेजेंट होती है, मैक्रो एंड माइक्रो। बस ये स्ट्रक्चर, एनल पोर साइटोप्रॉक्ट होता है, सेल माउथ साइटोसोम होता है, ये रहा बक्कल अपर्चर, ओरल ग्रूव, पेलिकल्स, सीलिया, इसको देख सकते हैं, बनाया होगा इसको। Question number 89. Micronucleus of paramecium is diploid in nature. There are 2 types. Which species of the paramecium has a symbiotic algae Zooxanthellae? That is. Question number 91. The macronucleus of paramecium is polyploid and controls the metabolism. Next is 92. The answer is B. Reproduction. ये द एंडोमिक्सिस इज द मोड ऑफ रिप्रोडक्शन फाउंड इन द पैरामीशियम। और यहाँ से क्वेश्चन क्या बन सकता है, दैट इज हु डिस्कवर्ड वुडरफ एडमैन डिस्कवर्ड, एंड इट इज़ वन ऑफ द मेथड ऑफ द न्यूक्लियस ऑर्गेनाइजेशन, देयर इज नो मियोसिस, नो न्यूक्लियर फ्यूजन। ये इंपॉर्टेंट लाइन है। और प्रोड्यूस्ड विदाउट सिंकैरियोनिक फॉर्मेशन। द पैरामीशियम इज प्रोड्यूस्ड बाय विच पार्टिकल, दैट इज कप्पा पार्टिकल। Question number 95. Some individuals of paramecium have special granules called as kappa particles in their cytoplasm, which produce a toxin, and that toxin is that is paramycin. Next question is the posterior contractile vacuole of paramecium postulates faster than the anterior. Question number 97.
That is, which of the following is not a flagellate? That is paramecium. Question number 98. The posterior contractile vacuole of paramecium pulsates, that is faster than the anterior vacuoles. 99. The function of the CV is osmoregulation and the posterior CV is faster than the anterior in pulsating. ये important line है. Question number 100. Between the two contractile vacuole of paramecium, same as का explanation बार दिया, that is the posterior one posterior is faster than this.